सबसे पहले आप लोग ये लिख डालो, ये 2-3 चीज लिख डालो। लीविंग ग्रुप क्या होता है पहले, उसके बाद बिना कॉल पे डालो। लीविंग ग्रुप, राइट डाउन लीविंग ग्रुप। द ग्रुप विच लीव विद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप विच लीव with bond pair electron is called leaving group and represented by L, capital L, represented by L। देखो यहाँ से ये ग्रुप है कोई, ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके और यहाँ से निकल गया, लीव किया, दैट वन इज द लिविंग ग्रुप। एग्जाम्पल्स है लिविंग ग्रुप का, एग्जाम्पल OTF, OTS, OBS, ONS, बहुत सारे ग्रुप हैं। I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ACO माइनस, that one is the triplet ion। That one is the tosylate ion। That one is the brosylate ion। That one is nitrosylate ion। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, that one is the acetate ion। जैसे इसका स्ट्रक्चर है ट्रिपलेट का, CF3, that one is oxygen, that one is nitrosylate and NO2 ring has double bond O, O minus। और ब्रोमोक्लोरोहाइड्रो को तो जानते हो, और that one is the CH3, C double bond O minus। नोट करो तो मैं और बताता हूँ। लाइक दैट, जैसे दैट वन इज द बेंजीन रिंग O माइनस, फिनॉक्सी आयन है, इसको बोलते हैं फिनॉक्सी आयन। Mesylate ion, that one is the CH3 as double bond O, O minus, that one is the mesylate ion। Leaving nature of leaving group is directly proportional to, write down, leaving nature of leaving group is directly proportional to stability, या stability of an ion या stability। Next point, strong acid and its conjugate base are weak base and good leaving nature। राइट डाउन, प्रॉब्लम लिखना है इस पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग नेचर, डिक्रीजिंग, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग नेचर। फर्स्ट वन I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, 1 2 3 4। सेकेंड वन O माइनस, O माइनस, O minus, 1 2 3। Fourth, double single O minus। Third, O minus,
CH3 O minus NO2 1 2 3 4 O minus Cn. Fourth, SO3 minus COO minus O minus CH3. Five, CF3 SO3 minus CH3 SO3 minus CH3 COO minus CH3 CH2O minus. Six, CF3 COO minus CF2 H COO minus CH2F COO minus CH3 COO minus. कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. स्टेबिलिटी देखो, जो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका लिविंग बहुत ज्यादा होगा. On the basis of what? Stability. ये जो एक ऊपर ऑर्डर लिखा है वो जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप. पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा उसको. ऊपर वाला बाद में लिखना. इसका देखो आंसर है इसका फर्स्ट का 1 3 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप. कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने सिखाया था. स्टेबिलिटी 4 1 3 4 1 2 3. That one is हाँ 3 4 1 2. Is it clear? Any doubt about it? Next one 1 2 3 4 और 1 1 2 3 4. और ये जनरल डिक्रीज ऊपर जो लिखा है ना मैंने, वो जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर है. जनरल आवाज बहुत आ रही है. हाँ प्लीज फाइन. कौन सा? हाँ ये लिख लो जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर ऑफ जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर ऑफ डिफरेंट लिविंग ग्रुप. जनरल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग पावर ऑफ डिफरेंट लिविंग ग्रुप. ये OAC मतलब ये होता है, that one is the O minus C double bond O CH3, that one is acetate ion. इसको हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप को. एसिटिल ग्रुप या that one is the acetyl group. Whole is acetate.
AC means acetyl, whole acetate है. Write down next one, next heading, solvent. Solvent is basically two types. एक polar solvent, that one is non-polar solvent. Polar is basically two types, protic polar and aprotic polar. First one is protic polar. Write down solvent. Solvent are basically two types, polar and non-polar. Polar are two types, protic polar and aprotic polar. Write down protic polar, solvent which release H plus ion, या proton with high dielectric constant value is called protic polar solvent. Example है इसका, that one is H2O, methyl alcohol, ethyl alcohol, formic acid, acetic acid, propyl alcohol, ammonia, tertiary butyl alcohol, कुछ भी, something. All are example of protic polar solvent. Write down next one, next point is when they solvate, protic polar solvents solvate both cation as well as anion. Cation is solvated by ion dipole interaction, but anion is solvated by intermolecular hydrogen bonding. Next point, protic polar solvent separate cation and anion. Or last point, protic polar solvent used in SN1 mechanism. जब मैकेनिज्म बताएंगे तो क्लियर होगा. एक्चुअली क्या है, देखो जरा ध्यान सुनना. ये मान लो NaBr है और ये एक्वस मीडियम है, वाटर है, तो ये सॉल्वेंट है, तो इसमें Na प्लस है और क्या हो गया Br माइनस है, दोनों को सॉल्वेट करेगा ये वाटर सॉल्वेट करके ये जैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन से सॉल्वेट करेगा H2O. That one is the ion dipole interaction. That one is ion dipole interaction. That one is solvated by intermolecular hydrogen bonding, H2O. Intermolecular hydrogen bonding. और जैसे ये सॉल्वेट होंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे. कैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म में, जैसे रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैटायन और एटायन है, कैटायन और एनायन है, और प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है. तो कैटायन आर सॉल्वेटेड बाय व्हाट, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एंड एनायन इज सॉल्वेटेड बाय व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दोनों सेपरेट हो जाएंगे रिएक्शन में. यूजुअली ये जो यूज होते हैं बाय इन SN1 मैकेनिज्म. जैसे इसमें भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है. डाइइलेक्ट्रिक जो वाटर है ना, वाटर उसका 80 होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू.
लिख डालना, कुछ कुछ प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख डालो। वाटर की है 80, एसिटिक एसिड का है 6.2, मिथाइल अल्कोहल का है 33। हाँ, वाटर का है 80, एसिटिक एसिड का है 6.2, मिथाइल अल्कोहल का है 33, इथाइल अल्कोहल का 24.55, नाइट्रोमीथेन का है 35.87, नाइट्रोमीथेन 35.87, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का है 18, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 18, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 18, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का 18, या एन ब्यूटाइल अल्कोहल का, that one is also 18, और फॉर्मिक एसिड का 58, that one is the dielectric constant वैल्यू है। ये प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। जो कॉमन यूज होते हैं सॉल्वेंट, उनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। राइट डाउन ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट विच नॉट रिलीज H plus ion, proton, solvent which not release H plus ion are called aprotic polar solvent. Next one, they solvate cation by ion dipole interaction, but they does not solvate anion. ये केवल कैटायन को सॉल्वेट करते हैं, एनायन को सॉल्वेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, जनरली यूज इन SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये जो यूज होता है SN2 मैकेनिज्म में। कौन कौन से हैं, जैसे मैं लिखता हूं डाइइथाइल ईथर, दैट वन इज डाइइथाइल ईथर, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। सेकेंड वन इज THF, tetrahydrofuran. Next one is 1, 2, 3 acetone. Fourth one is hexamethyl phosphoric triamide. Next one is DMF, dimethyl formamide, DMF। इसको शॉर्टकट लिखते हैं HMPT। 6 नंबर पे आता है एसिटोनाइट्राइल, CH3CN, और 7 नंबर पे है DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। The structure of that one is CH3 S double bond O CH3, और इसका जो पोलर नेचर है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा पोलर होगा 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलर नेचर।
on the basis of what? Dielectric constant. अच्छा, इसमें एक चीज कर लेना जरा, इसका देखना, इसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है। ये 6 की जगह 5 कर लेना, 5 की जगह 6 कर लेना, और कुछ नहीं, इंटरचेंज कर देना। 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है, 1 पॉइंट का। मैं आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता देता हूं। इसका 38 होता है और इसका 37 होता है, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा डीएमएफ ज्यादा होगा पोलर। और डीएमएसओ का 47 होता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसकी वैल्यू 47 होती है, इसकी 29.4 होती है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, एसीटोन की होती है 21, इसका होता है 7.5, और सबसे कम होता है 4 पॉइंट समथिंग डाइथाइल ईथर का। ऑन द बेसिस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी ज्यादा है, 5 का 1 पॉइंट ज्यादा है, 37 38 है। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को हम ज्यादा पोलर बोलेंगे इन कंपैरिजन टू एसीटोनाइट्राइल। 1 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें, मिटा दो। राइट ऑन। अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि जैसे अच्छा ओके, लिख लो कोई बात नहीं। जैसे दैट वन इज द NaBr। हाँ बोलो ना। एक मिनट, जस्ट a minute। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं, वैल्यू लर्न थोड़े करना है, आपको ये देखना है कि पोलैरिटी कोई वैल्यू मैंने आपको इसलिए बताया वैल्यू कि पोलैरिटी किसकी ज्यादा है। अब ऐसे ये इससे नहीं निकाल सकते कि एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा है तो आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से हम लोग पोलैरिटी बताते हैं, डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो वैल्यू लर्न नहीं करना है, मतलब वैल्यूज को मालूम होना चाहिए, जिससे वो जो जनरल ऑर्डर दिया है ना कि कौन कौन से सॉल्वेंट की पोलैरिटी डिफरेंट है। अब जैसे ऑर्डर आपको पता चल गया कि एप्रोटिक पोलर में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, प्रोटिक में कौन सा पोलर है, वैल्यू से पता चल गया। तो मतलब अगर रिएक्शन कोई कराएंगे तो उसमें रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा उस सॉल्वेंट में, उसमें क्या होगा, स्लो होगा। अगर सबस्ट्रेट सेम हो तो वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उस ऑर्डर को देख लेना। अब देखो ये जो हमने बताया कि इन एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट cation is solvated by what? Ion dipole interaction. Suppose that one is the Na+, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, O डबल बॉन्ड S, मैंने ये ले लिया मी DMSO, O डबल बॉन्ड S मी O डबल बॉन्ड S मी, और that one is the O double bond S me, O double bond S me, ये that one is the ion dipole interaction, और that one is the anion is not solvated by H bonding, ये सॉल्वेंट नहीं होता है, ऐसे रहता है। इसको बना डालना, उसके बाद लिख डालना नॉन पोलर सॉल्वेंट। फटाफट लिखो, ये सब बेसिक चीजें हैं, मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद मैकेनिज्म में आगे आते हैं। दैट वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नेक्स्ट वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट।
Non-polar means not polar. Solvent which are not polar is called non-polar. करना क्या है इसमें? एग्जाम्पल इसके हैं बेंजीन, xylene. xylene का स्ट्रक्चर जानते होगे, दैट वन इज xylene, ऑर्थो मेटा पैरा xylene. नेक्स्ट हेक्सेन, हेप्टेन, CS2, CCl4, all are what? Non-polar solvent. Example है. ये सब सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है. मैंने ये आपको लर्न करा दिया कि फर्स्ट थिंग लिविंग ग्रुप, सेकंड थिंग सॉल्वेंट, थर्ड थिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी. राइट नाउ अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखो फटाफट फटाफट, हरी अप. अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल on electron deficient center. Attacking tendency of nucleophile on electron deficient center. Attacking tendency of nucleophile on electron deficient center. Usually C plus. Usually C plus is called nucleophilicity. Nucleophilicity. Next point. Attacking tendency of H plus ion. Attacking tendency of H plus ion on electron rich center. Electron rich center मतलब न्यूक्लियोफाइल पे. अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ H plus ion on electron rich center is called basicity. Is called basicity. Next point. Nucleophilicity and basicity depend on following factors. देखो अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दैट वन इज द न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, दैट वन इज द व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी. और अगर इसी पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और इस पे H प्लस अटैक करे तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी. मान लो ये प्लस चार्ज है, इस पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं Nu माइनस, और फिर प्लस चार्ज है, इस पे अटैक करा रहे हैं Nu1 माइनस. ये भी अटैक किया, ये भी अटैक किया. इसके अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है. इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? Nu1 माइनस की ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे? Nu से. मैंने ऐसे जनरल केस दिया. अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो मैंने दो न्यूक्लियोफाइल लिया है, Nu1 Nu माइनस. इसको अटैक किया, इसको अटैक किया. इसकी अटैक करने की टेंडेंसी थोड़ी मैंने ज्यादा दिखा दी, इसकी कम की. तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी. सपोज मैंने एज्यूम किया है ऐसे. अभी किस चीज पे डिपेंड करेगा? सो मेनी पैरामीटर्स. राइट डाउन. इसको नोट करके आगे लिखो.
Write down. First point. Negative charge species or a stronger nucleophile than its neutral molecule. Negative charge species is stronger nucleophile than its neutral molecule. और इसी में सेकेंड nucleophilicity is inversely proportional to stability of an ion. Inversely proportional to stability of an ion. ये दो बेसिक चीज है, सबको मालूम होना चाहिए. Two basic things. Nucleophilicity is inversely proportional to stability of an ion. पहला तो पॉइंट ये लिखवाया OH माइनस है, दैट वन इज द H2O. न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? 1 की 2 से. नेगेटिव चार्ज है, इसकी ज्यादा होगी, दैट वन इज न्यूट्रल. सपोज दैट वन इज द SH माइनस, दैट वन इज द H2S. फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से. सपोज CH3 CH2 O माइनस CH3 CH2 CH2 OH. इसी का न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लें तो किसकी ज्यादा होगी? 2 की, किसकी? 1 से. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. फिर मैंने ये बताया कि जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी. सपोज CH3 CH2 CH2 O माइनस और दैट वन इज द PHO माइनस और दैट वन इज द PHCOO माइनस. तो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4. अब ये O माइनस है, O माइनस है, ये O माइनस है. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? 1 2 3. जो ज्यादा स्टेबल है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी. स्टेबल है तो अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी. जैसे O माइनस, दैट वन इज द CH3, दैट वन इज O माइनस, दैट वन इज NO2, दैट वन इज द O माइनस, नथिंग, कुछ भी नहीं. 1 2 3. क्वेश्चन नेक्स्ट 5. तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? 1 की, उसके बाद 3 की, उसके बाद 2 की. 2 तो ज्यादा स्टेबल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी. जरा दीप हैंड राइज करो तो देखें तो कौन दीप है. दीप हैंड राइज करो. हैंड राइज, हाँ यस, ठीक है. Write down nucleophilicity in group. Nucleophilicity in group. In protic polar medium, nucleophilicity is directly proportional to size of central atom. Size of central atom. In aprotic polar medium या non-polar solvent, in aprotic polar medium या non-polar solvent, in aprotic polar medium या non-polar solvent, nucleophilicity is directly proportional to charge density. Charge density. जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर या एक्वस मीडियम, जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस 1 2 3 4. और इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन व्हाट? DMSO या कोई और ले लो, DMF. 1 है फ्लोरो, सेकेंड ब्रोमो क्लोरो आइडो, क्लोरो आइडो. तो देखो लुक हियर, इसमें जो आंसर होगा साइज इसकी ज्यादा होगी, 4 3 2 1 आंसर. क्यों होगा वो भी जानो. इसमें होगा आंसर
1 2 3 4। एक्चुअली क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इस फ्लोरीन को ट्रैप कर लेंगे। लुक हियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O 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 H2O, दैट वन इज H2O, दैट वन इज H2O। तो चारों तरफ से ट्रैप कर लेंगे तो ये सॉल्वेट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्वेट हो गया। तो जब इसको चारों तरफ से ट्रैप कर लेंगे तो दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। भाई C+ पे अटैक करने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट कर लिया बाय इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो 4 3 2 1 डिपेंड ऑन साइज। अब देखो ये DMSO ले लिया है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं होगा। तो अब छोटी साइज है तो इसकी चार्ज डेंसिटी, छोटी साइज है ना फ्लोरीन की, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, 1 2 3 4। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, राइट। अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, ना प्रोटिक ना एप्रोटिक, तब एज्यूम कर लेना कि वो क्या है, एक्वस मीडियम में पूछ रहा है। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं, प्रोटिक या एप्रोटिक, ऐसे कभी कभी कर देते हैं, तो इसका मतलब एज्यूम कर लेना कि वाटर है। हमारी बात समझ गए, बोलो। हाँ चलो चलो। इन दोनों के लिए बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। ये जानते हो कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बिकॉज HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HF, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा। Write down nucleophilicity in period. Nucleophilicity in period is inversely proportional to electronegativity of central atom. Like CH3 minus, NH2 minus, OH minus, F minus, 1 2 3 4। न्यूक्लियोफिलिसिटी बताया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, कार्बन की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, वन टू थ्री फोर, बिकॉज इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसका है, CH का, उसके बाद N का, उसके बाद OH का। और इसके लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। बेसिसिटी भी क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसका एसिड बनाओ तो क्या बनेगा, CH4, इसका क्या बनेगा, HF। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH4, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक है। तो बेसिसिटी भी किसकी ज्यादा होगी, 1 2 3 4। इसके लिए क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का रिलेशन सेम है, सेम थिंग इन पीरियड। अब पूछा जाए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, फर्स्ट में किसकी ज्यादा होगी, टेल मी, लुक हियर ऑन बोर्ड। फर्स्ट में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, टेल मी। बोलो। 2 then 1, इसमें वो डाउन द ग्रुप है ना, सर अभी जो आपने एग्जांपल दिया उसमें ग्रुप में कंपेयर किए ना सर। हाँ जी बोलो तो।
मैंने दो एग्जाम्पल दिया, ग्रुप को बता चुके हैं ना, मैंने क्वेश्चन पूछा है, पीरियड का तो बता दिया, अब मैं क्वेश्चन दिया उसमें, अब तो मिक्स क्वेश्चन दूंगा, ये ग्रुप पीरियड क्या, कोई भी दो, कॉमन सेंस। कॉन्सेप्ट ग्रुप का सिखा चुके हैं ना, तो उसपे मैंने अप्लाई करवाया कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है ग्रुप के, पीरियड का तो मैंने सिखा दिया, अब मिक्स में क्वेश्चन दूंगा, अब क्या। जब जब सीख लेते हैं तो सब मिक्स क्वेश्चन, ग्रुप सिखा दिया, पीरियड भी सिखा दिया, खत्म, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। If nucleophilic center are same, write down. If nucleophilic center are same, but different bulky alkyl group, present on it. If nucleophilic center are same but different bulky alkyl group present on it. Again, if nucleophilic center are same but different bulky alkyl group present on it, then nucleophilicity is inversely proportional to bulkiness of alkyl group. लास्ट केस था ये, और इस पे जितने भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाए बुकलेट में, इधर उधर न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी 25 क्वेश्चन होंगे इधर उधर, सारे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये H है, O है, माइनस है, दैट वन इज अ CH3 CH2 O माइनस, दैट वन इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH3 CH O माइनस, दैट वन इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 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 O माइनस। 1 2 3 4, मैंने ये बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और इस पे एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, दैट वन इज अ बल्की ग्रुप और बहुत बड़ा बल्की ग्रुप। तो क्या होगा, जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, मतलब इसके अटैक करने की, बहुत बिगर ग्रुप है, बहुत भारी ग्रुप है, तो दूसरे के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी, बिगर है ना, अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, वन की, 2 की, 3 की, 4 की, बल्कि जैसे कम हुआ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो गई। अब जरा ध्यान सुनना, ये किसी C+ पे जाके अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गई, और इसके ऊपर H+ अटैक करेगा तो बेसिसिटी हो गई। अब ये जाके अटैक नहीं कर रहा है, इस पे H+ अटैक होगा तो बेसिसिटी, क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया, तो ऑक्सीजन में -4 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, H+ अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये दूसरे के ऊपर जाके अटैक नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कौन आ रहा है, H+ आयन, छोटी साइज है, तो इसकी बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, 4 3 2 1। मतलब इसके लिए, इस केस के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। भाई ये जाके दूसरे के ऊपर अटैक करे, किसके ऊपर, C+, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो बल्कि ग्रुप है तो अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, भारी ग्रुप है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, इस पे तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, लेकिन इस पे H+ अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, बेसिसिटी ज्यादा। न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 2 3 4 और बेसिसिटी 4 3 2 1। पहले यही बताते हैं, पेनाकोल पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको बता दें, पेनाकोल पेनाकोलोन, ये
कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। बहुत सारी चीजें बताएंगे, फटाफट फटाफट चलते चलो तो बहुत सारी चीजें सीख लोगे। दैट वन इज एसीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसके 2 मोल लेंगे और Hg से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो बना COH OH OH CH3 that one is called pinacol। और इसको कॉम H2SO4 से ट्रीट करोगे तो that one is what, pinacolone, CH3 PINA, pinacolone। और पिनाकोल टू पिनाकोलोन फॉर्मेशन को बोलते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये पिनाकोल है, 2 एडिशन कार्बन पे 2 OH आ गए ना, तो उसको बोलते हैं पिनाकोल। कहीं पे भी एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे इसका, तो फटाफट पहले राइट डाउन, जल्दी से लिख डालो, रिएक्शन लिखो तो मैं मैकेनिज्म फटाफट बताऊं। देखो मैकेनिज्म समझ लो, एक समझ लो, उस पे अप्लाई करना। उसके बाद Mg है ना, Mg, ये Mg+2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। दैट वन इज C डबल बॉन्ड O और व्हाट, CH3, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे CH3। अब ये जानते हो कि ये पोलर बॉन्ड है, 2 मोल ले लिया इसका, तो पोलर बॉन्ड मतलब क्या हो गया, CH3 CO माइनस चार्ज और क्या CH3, और इस पे क्या था चार्ज, प्लस चार्ज। कितने मोल, 2। अब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक मोल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे मोल में दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया, CH3 CO माइनस, और क्या हो गया CH3, और क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर CO माइनस, और क्या हो गया CH3 और क्या 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दोनों मोल में इंटर कर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। ये क्या होगा CH3O माइनस CH3 CO माइनस CH3 और माइनस चार्ज। अब देखो क्या है, Mg डबल प्लस है ना, तो इससे क्या बना, ये प्लस माइनस का सॉल्ट, मतलब Mg डबल प्लस है, 2 माइनस चार्ज है, सॉल्ट बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा H, 1 मोल वाटर, फिर ये वाला भी टूटा, यहाँ पे क्या होगा H, यहाँ पे क्या होगा OH, क्या निकल गया MgOH ट्वाइस, अब प्लस CH3 COH CH3 अब इसको बोलते हैं पिनाकोल। तो मैंने पूरा आपको सिखाने के लिए इनिशियल स्टेप से बताया, जहाँ से स्टार्ट हुआ है पिनाकोल। रिएक्शन तो अब शुरू होगा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अब यहाँ शुरू होगा मैकेनिज्म, पिनाकोल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये पिनाकोल कैसे बना ये मैंने आपको बताया, तो फटाफट राइट डाउन, तो मैं इरेज करूंगा, उसके बाद पिनाकोलोन में रीअरेंजमेंट बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा। ये तो मैंने बताया पिनाकोल कैसे बनता है, हाउ कैन वी फॉर्म व्हाट, पिनाकोल फ्रॉम कीटोन। देखो अब यहाँ से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में बता रहा हूँ। देखो COH CH3 दैट वन इज पिनाकोल। इसमें सबसे पहले क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा। कहां से मिलेगा H प्लस, H2SO4 से। कहां पे अटैक करेगा, उसी OH पे अटैक करेगा जिससे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। यहाँ पे दोनों OH सेम है, बोथ आर सेम थिंग, मिथाइल 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 मिथाइल।
लेकिन अगर डिफरेंट है तो उसी पे H प्लस अटैक करेगा जहां से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन जाए। कैसे? अब दोनों सेम है तो कहीं पे अटैक कराओ, क्या बनेगा? CH3C और क्या हो गया? OH2 प्लस चार्ज और क्या हो गया? CH3 फिर COH, दैट वन इज CH3 इतना समझ गए? इतना समझ गए? किसी को डाउट? भाई O पे अटैक किया तो दो बॉन्ड है और तीसरा बॉन्ड आ गया, H3O प्लस हो गया, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा और क्या निकल जाएगा? -H2 वाटर, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? CH3C प्लस चार्ज और क्या हो गया? CH3, here we put what? COH, CH3 that one is the carbocation formation, RDS, rate determining step। ये कार्बोकेटाइन बना तो मैंने यही बताया कि OH पे H उसी पे अटैक कराना, उसी OH पे जिससे कार्बोकेटाइन ये वाला ज्यादा स्टेबल बने। अगर डिफरेंट हो तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी अटैक करो बात बराबर है। अब देखना, अब मैंने आपको रीअरेंजमेंट सिखाया है। अब यहाँ से इसको बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 2, मिथाइल ग्रुप अपना बॉन्ड वॉन्ड लेके यहाँ पे कहाँ पे आ गया? यहाँ पे दोनों मिथाइल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 2,1 मिथाइल शिफ्ट। क्यों शिफ्ट करेगा? फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। कैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? देखो बढ़ गई स्टेबिलिटी, COH प्लस चार्ज और क्या हो गया? CH3। That one is 2 degree carbocation, that one is 3 degree carbocation, but that carbocation is stabilized by resonance, donor acceptor resonance। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इसका, देखो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ। Here we make what? CH3 C double bond O H, here we put what? प्लस चार्ज CH3। इससे ये बनाएंगे। अब क्या किया? HSO4 जो है HSO4 माइनस इस हाइड्रोजन को पिकअप कर लिया, इस हाइड्रोजन को कैटलिस्ट है, निकल गया H2SO4, क्या बन गया? पिनाकोलोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, that one is the पिनाकोलोन। Is it clear? बोलो बोलो जल्दी, हरी अप। अब देखो ऐसे एप्लीकेशन फटाफट कर लेना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ऐसे एप्लीकेशन फटाफट कर लेना, जैसे यूं 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 और H प्लस हीट दे दे तो क्या बनाओगे? कितने गिरेंगे? 4, 5 और डबल बॉन्ड हो। एक समझा देते हैं और सबको ट्राई करना, कुछ नहीं है। पहले क्या होगा? H प्लस अटैक किया, एक समझा दो, OH2 प्लस चार्ज, that one is OH, क्या निकल गया? वाटर, क्या बनाएंगे? प्लस चार्ज और that one is OH। रिंग क्या हो गया? एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या बन गया? 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और that one is what? OH प्लस चार्ज। अब लोन कर क्या होगा? डिलोकलाइज होगा, क्या बन जाएगा? H प्लस निकल गया। समझा हमारी बात? बोलो। अब एप्लीकेशन तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एप्लीकेशन में क्या करना है? जैसे मान लो PH COH 4 गिरिंग और H प्लस हीट। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर सकते हो। सपोज लाइक दैट PH COH OH CH3H H प्लस हीट। मैंने क्वेश्चन दे दिया, ऐसे फटाफट बना सकते हैं हम लोग कुछ भी। That one is CH3 OH CPH CH3 OH H plus heat।
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। हाँ बोलो क्या बोलो। OH 5 membered ring, H plus heat। कुछ भी किसी को भी हम लोग बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैकेनिज्म खुद ट्राई करना आप लोग, मैं आंसर लिख देता हूँ, खुद ट्राई करना घर पे। सबका सोल्यूशन लिख दिया है आंसर, खुद ट्राई करना बैठ के घर पे। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने आपको जरा इधर देखना बोर्ड पे, या मान लो ये Cl है और यहाँ पे देते हैं OH देते हैं, that one is CH3 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 CH3। आपको याद होगा GOC में हम लोगों ने पढ़ा है AgNO3 का रिएक्शन, AgCl का प्रेसिपिटेट, AgBr का प्रेसिपिटेट, AgI का प्रेसिपिटेट, याद आ रहा है? बोलो। तो AgNO3 किससे रिएक्ट करेगा? Cl से, तो किसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा? AgCl। और क्या बना? CH3 CH3 CH3, कार्बोकेटाइन CH3 CH3 OH। फिर मिथाइल शिफ्ट करा दो, क्या बन जाएगा? CH3 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 और OH प्लस 4 CH3, that one is 2,1 methyl shift। ऐसे भी करा सकते हैं। और ये क्या हो गया? लोन पेयर यहाँ पे आ गया, क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 4 और क्या? CH3। फाइनल स्टेप में कौन अटैक करेगा? NO3 माइनस किसको पिकअप किया? हाइड्रोजन को। क्या बन गया? फेनोकोलोन। ऐसे भी करा सकते हैं। एक हाइड्रोजन है, बाजू में OH है, तो AgNO3 से ट्रीट कर दिया, AgCl का प्रेसिपिटेट, AgBr का प्रेसिपिटेट, AgI का प्रेसिपिटेट, कुछ भी ले लो, कार्बोकेटाइन बन गया, फिर रीअरेंज हो जाएगा। समझा? जैसे मान लो ये दे दे OH Cl AgNO3 दे, बहुत अच्छा सम है। क्या हो जाएगा? AgCl, यहाँ पे कार्बोकेटाइन 5 की रिंग के बाहर प्लस चार्ज है, रिंग क्या हो जाएगी? एक्सपेंड। कितने की रिंग हो जाएगी? 6 और OH और प्लस चार्ज होगा, डिलोकलाइज हुआ तो क्या होगा? डबल बॉन्ड हो। बोलो। डन। राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। अब जरा ध्यान सुनना, ये तो एक रिएक्शन था, बीच में आता है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, फिनोल फिनोकोलोन रीअरेंजमेंट, तुम्हारे बुकलेट में भी दिया होगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें और मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे,
जब अल्कोहल पढ़ेंगे इसमें और मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन मैं बताऊंगा अल्कोहल में जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो। लेकिन बेसिक चीज आप जान लिए, अच्छा किया। अब देखो ध्यान सुनना, दो रिएक्शन है बुकलेट में, सारे क्वेश्चन दो ही रिएक्शन के हैं आपके पास, एक एलिमिनेशन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस पढ़ना है केवल। तो पहले हम लोग एलिमिनेशन ही शुरू कर देते हैं, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म बेसिस पे ही बता देंगे सारे। राइट ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये थोड़ी बहुत इसकी एलिमिनेशन की बेसिक चीजें बता दूं, उसके बाद एडवांस बताता हूँ। रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप, रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप, रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप from a molecule is called elimination reaction, is called elimination reaction. Removal of two atom or group from a molecule is called elimination reaction. Always take place at higher temperature, always take place at higher temperature. For elimination reaction, delta G will be negative. T delta S is greater than delta H. मतलब delta G is equal to delta H minus T delta S. हायर टेम्परेचर पे होता है। सपोज कर लो मैं ये दो रिएक्शन लेता हूँ, that one is the potential energy, that one is the कोई रिएक्शन है, रिएक्शन पहला रिएक्शन लिया ये, और दूसरा इसी का बनाया ये। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना, दैट वन इज द ट्रांजिशन स्टेट TS, दैट वन इज द TS। जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो है एलिमिनेशन, जिसका कम है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ये दो ग्राफ लिया है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो है एलिमिनेशन, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। अब देखो एलिमिनेशन में पहले दो के बारे में डिस्कस करते हैं। नोट कर लो जिसको नोट करना है, हरिया नोट करना है, नोट कर लो जल्दी से हरिया। इरेज करूं? अब देखो, अब एलिमिनेशन में एक होता है 1,1 अल्फा, 1,1 अल्फा या अल्फा एलिमिनेशन। मतलब 1,1 अल्फा या अल्फा एलिमिनेशन का मतलब ये हो गया रिमूवल ऑफ टू एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, removal of two atom or group from alpha carbon atom is called 1,1 alpha elimination, right? Removal of two atom or group from alpha carbon atom, removal of two atom or group from alpha carbon atom is called 1,1 alpha elimination. देखो हम लोगों ने किया है CCl2 डाइक्लोरोकार्बन बनाया था, याद है? यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस HCl। That one is example of dehydrohalonation, dehydrohalonation। मैकेनिज्म हम लोगों ने किया है, ये बेस है ना B माइनस, ये हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, क्या बन जाएगा CCl Cl 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 माइनस चार्ज, और ये Cl इज द लिविंग ग्रुप, यहाँ से लीव किया, क्या बना डाइक्लोरोकार्बन।
एक ही कार्बन से दो निकला, क्या निकला? HCl. That one is what? Dehydrohalogenation. Same carbon, that one is alpha carbon. Alpha carbon से दो निकला, डाइक्लोरोकार्बन बना. That one is 1,1 alpha elimination. Dehydrohalogenation always take place in the presence of dehydrohalogenating agents. ये क्या लेते हैं? बेस विद टेम्परेचर. जैसे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, जैसे NaNH2, ROK, सबके साथ टेम्परेचर ट्राइएंगल. RONA, या कोई बल्कि बेस ले लो, या देखो इस बेस को हम लोग बोलते हैं, इस बेस को सोडियम या पोटेशियम, कुछ भी ले लो, सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, और इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे लिखते हैं टर्सरी Bu. अगर सोडियम हो तो पोटेशियम हो तो OK या ONA, ऐसे लिख सकते हैं. टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट. तो ऑलवेज बेस है, मतलब कॉमन बेस है. इसके अलावा और कोई बेस ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लोग हैं, और कोई बेस भी ले सकते हैं, लेकिन दैट वन इज द कॉमन बेस. प्लस माइनस का सॉल्ट है, प्लस माइनस का सॉल्ट. अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, NaNH2 विथ टेम्परेचर. ट्राइएंगल का मतलब टेम्परेचर वो छोटा सा लिखा है मैंने. RONA, पोटेशियम टर्सरी बीटा ऑक्साइड या सोडियम टर्सरी बीटा ऑक्साइड. दैट वन इज टेम्परेचर. ये टेम्परेचर है. That one is example of 1,1 alpha elimination या dehydrohalogenation. Right now, 1,2 beta elimination या beta elimination. अब देखो इसी में मैं पूरा डिटेल स्टडी लगा दूंगा, इसी में एडवांस. रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा एंड अदर फ्रॉम बीटा. रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा एंड अदर फ्रॉम बीटा इज कॉल्ड 1,2 बीटा. रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा अदर फ्रॉम बीटा इज कॉल्ड 1,2 बीटा. लॉस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड. इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ 2 सिग्मा, गेन ऑफ 1 पाई. और इसका पहला एग्जांपल लेते हैं डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. देखो CH2OH, H, अल्फा बीटा. OH के रिस्पेक्ट में अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में बीटा. यहाँ से क्या निकल दिया? वाटर माइनस H2O, क्या बन जाता है? एल्कीन. और जो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, एजेंट्स वो
क्या होता है, एसिड होता है, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होगा। एसिड, एसिड में जैसे कॉन्संट्रेटेड H2SO4, H3PO4, KHSO4, Al2O3, P2O5 या P4O10, THO2, thorium dioxide, all are what, dehydrating agent. That one is the P2O5. That all are what, dehydrating agents. Usually हम लोग यही लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, नॉर्मली हम लोग यही लेते हैं, all are dehydrating agent. अब देखो यहाँ से हम अब मैकेनिज्म शुरू कर देंगे, यहीं से अब डिटेल स्टडी बना देंगे यहीं से। ये सब सुपरफिशियल है, ABCD है। अब यहीं से इसी स्टेप से मैं इंटर कर जाऊंगे टोटल डेप्थ में सब्जेक्ट के। अब लिखना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, नेक्स्ट हेडिंग लिखना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय इवन मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म है इवन मैकेनिज्म, इवन मैकेनिज्म, या इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। दैट वन इज द कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय इवन मैकेनिज्म या कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। लिख लो आराम से लिखो। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। कार्बोकेटायन मैकेनिज्म या इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन किसको? इवन को। वन स्टैंड व्हाट? यूनिमॉलिक्यूलर। ई स्टैंड व्हाट? एलिमिनेशन। वन को यूनिमॉलिक्यूलर, ई को एलिमिनेशन बोलते हैं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। अब कार्बोकेटायन मैकेनिज्म इवन एलिमिनेशन बता रहे हैं। मैकेनिज्म में आ गए एलिमिनेशन के। फर्स्ट मैकेनिज्म इवन मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख डालो, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। Formation of carbocation is RDS, rate determining step. Next point. Rate is directly proportional to stability of carbocation. Rate is directly proportional to stability of carbocation. Next point. Rearrangement take place for gaining stability of carbocation. Rearrangement take place for gaining stability of carbocation. Next point. Major product formation take place. Major product formation take place by most stable carbocation. By most stable carbocation. By most stable carbocation. और लास्ट पॉइंट है most thermodynamically stable. Most thermodynamically stable alkene formed as major product. Most thermodynamically stable alkene
formed as major product. Thermodynamically stable का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना which is stabilized by resonance and hyperconjugation. Which is stabilized by resonance and hyperconjugation. अब इसी को देख लो, इसकी मैकेनिज्म देख लो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देख लो और उसके बाद आप लोग घर जाओ, मैं भी जाऊं, राइट, इसको पूरा समझ लो. That one is the CH3, 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 CH, OH. इसी को समझ लो, Kong H2SO4, हीट, इसका हमने प्रोडक्ट ये बनाया CH3, CH3 और क्या होगा डबल बॉन्ड CH3, CH3. ये रिएक्शन कराया, ये प्रोडक्ट बनाया. कैसे बनाया? पहली बार सबसे पहले H+ अटैक करेगा. कहाँ पे अटैक करेगा? O पे. That one is the acid, that one is the base. क्या बना? CH3, 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 CH3 और क्या हो गया CH, OH और क्या हो गया +4 CH3. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे. That one is the ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या निकल गया? वाटर. वाटर minus H2O. That one is the RDS, rate determining step. क्या बन गया? CH3, 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 CH3 और क्या हो गया CH +4 और क्या होगा OH. कौन सा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री. ऑक्सीजन में +4 है इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम. ऑक्सोनियम आयन. अब इसमें क्या करेंगे? मिथाइल शिफ्ट 2,1 मिथाइल शिफ्ट. क्यों करेंगे मिथाइल शिफ्ट? फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी. क्या बनाएंगे इससे? CH3 क्या बनाते हैं? इधर ऊपर CH3, CH3 और क्या हो गया +4 और CH3, CH3 और क्या H. That one is what? 3 डिग्री कार्बोकेटायन. 2 से 3 हो गया. अब क्या होता है? देखो कैसे प्रोडक्ट बनेगा. अब इस पे क्या अटैक करेगा? बेस. कॉन्जुगेट बेस क्या है? HSO4-. किसको पिकअप किया है? इस हाइड्रोजन को. समझा ना मेरी बात? ऐसे क्या निकल गया? H2SO4 और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड किधर आ जाएगा? इधर. तो कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? ऊपर बन जाएगा. That one is the mechanism of dehydration reaction. ये रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट है और ये इसकी मैकेनिज्म है. कैसे हुआ? That one is the mechanism. देखो इसको, इसका ग्राफ क्या है? देखो ये देखो. That one is the PE, potential energy, और that one is the progress of reaction. यहाँ से मान लो अल्कोहल है. That one is the alcohol जो मिटाया मैंने. ऊपर गया उसको ऐसे. ये ग्राफ क्या? ये that one is the TSC, that one is the alcohol substrate है जो मैंने लिया था. That one is the product P. ये P है, यहाँ पे P है P और यहाँ पे अल्कोहल है. ये वाला अल्कोहल मतलब रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट. अब देखो ये TS1 है, TS1 और that one is TS2. That one is the TS3 transition state. That one is the TS4. ये जो है, ये वाला जो नॉच है, नॉच ये A है. ऑक्सोनियम आयन है ये वाला स्ट्रक्चर है. ये A ये है. B ये है कार्बोकेटायन 2 डिग्री और ये C है 3 डिग्री कार्बोकेटायन C. और ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 4 है. कितने ट्रांजिशन स्टेट? 4 है.
ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन C है, B कौन सा है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ऑक्सोनियम आयन कौन सा है ये वाला नॉच A। तो इसमें 3 इंटरमीडिएट हैं, जितने इंटरमीडिएट बनाओगे ना उसमें +1 कर देना, वो ट्रांजिशन स्टेट आता है। कितने इंटरमीडिएट है 1 2 3, ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं 1 2 3 4। अब ट्रांजिशन स्टेट 1 क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे ट्रांजिशन स्टेट 1 में CH3 CCH3, that one is the CH3, that one is the CH, that one is the OH और that one is the CH3। इस पे जाके H+ अटैक करता है, H+, that one is the TS1 अटैक करेगा। जब अटैक करने के बाद क्या बन गया ये इंटरमीडिएट बना दिया है मैंने। अब ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या है 2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ TS2। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये अटैक करा दिया CH3 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 और that one is the CH, that one is CH3, ये बॉन्ड ब्रेक होता है डॉट 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 OH2 + चार्ज, that one is TS2। और जैसे टूटेगा तो क्या बनेगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन क्या हो गया B, रीअरेंजमेंट हुआ। तो रीअरेंजमेंट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 3 से दिखाएंगे। इसको मिटा दे इधर वाले को, पहले वाले को लिख लिया होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट 3 क्या है ये देख लो TS3। इसका मतलब जैसे ये CH3 और क्या हो गया ये that one is the CH + चार्ज और क्या हो गया CH3, ये CH3 जाता है ना ऐसे, किससे अटैच होता है इससे, तो उसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे ये ब्रेक हुआ और जाके अटैच हुआ CH3, that one is TS3। और TS4 क्या हो गया TS4 क्या हो गया CH3 + चार्ज और क्या हो गया CH3 और CH3 और क्या हो गया H को यहाँ से ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में प्लस फॉर्म में। इसको कौन पिकअप करेगा HSO4- और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड, that one is the what TS4। तो इसमें जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे किसी भी रिएक्शन में उसमें +1 कर देना, वही क्या आ जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। मान लो 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कितने होंगे 3, कहीं 3 बन रहे हैं तो 4 बन रहे हैं तो 5 बन रहे हैं तो 6 बन रहे हैं तो 7 और क्या 10 बन रहे हैं तो 11। तो जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे उसमें +1 कर देना, वो ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता है ट्रांजिशन स्टेट। राइट डाउन और इसको लिख के बाय बाय थैंक यू, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में।